क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड। 34 वचन और एक बार पढ़ेंगे। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे हम। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5, Solomon exhorts to study wisdom. First verse से पढ़ेंगे। My son, attend unto my wisdom and bow thine ear to my understanding, that thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil, but her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death, her steps take hold on hell. Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are movable, that thou canst not know them. Hear me now, therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house. Lest thou give thine honor unto others, and thy ears unto the cruel. Lest strangers be filled with thy wealth, and thy labors be in the house of a stranger, and thou mourn at the last when thy flesh and thy body are consumed, and say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof. 13 verse से आगे। And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined my ear to them that instructed me. I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly. Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well. Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets. Let them be only thine own, and not strangers with thee. Let thy fountain be blessed, and rejoice with the wife of thy youth. Let her be as the living. Let her be as the loving hind and pleasant roe. Let her breasts satisfy thee at all times, and be thou ravished always with her love. And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger? For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth all his goings. His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. He shall die without instruction, and in the greatness of his folly he shall go astray. Chapter 6, Against suretyship and idleness. 7 things hateful to God, blessings of obedience, mischiefs of whoredom. First verse से पढ़ेंगे। My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger, thou art snared with the words of thy mouth. Thou art taken in with the words of thy mouth. Do this now, my son, and deliver thyself when thou art come into the hand of thy friend. Go, humble thyself, and make sure thy friend. Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard?
When wilt thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that doeth, as one that travelleth, and thy want as an armed man. A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth. He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers. Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually, he soweth discord, therefore shall his calamity come suddenly. Suddenly shall he be broken without remedy. These 6 things doeth the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, and heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life, to keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Lust not after her beauty in thine heart, neither let her take thee with her eyelids. For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread, and the adulteress will hunt for the precious life. Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals, and his feet not be burned? So he that goeth into his neighbor's wife, whosoever toucheth her shall not be innocent. Hallelujah. Men, do not despise a thief if he steal to satisfy his soul when he is hungry, but if he be found, he shall restore sevenfold. He shall give all the substance of his house. But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding. He that doeth it destroyeth his own soul. Shabarakandaras. Labo kusoko laraha akatkin birike larahasa. A wound and dishonor shall he get, and his reproach shall not be wiped away. For jealousy is the rage of a man. Therefore he will not spare in the day of vengeance. He will not regard any ransom, neither will he rest content, though thou givest many gifts. Chapter 7. Solomon persuades to a sincere familiarity with wisdom. Cunning of a lewd woman, etc. First verse से पढ़ेंगे. My son, keep my words and lay up my commandments with thee. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Say unto wisdom, thou art my sister, and call understanding thy kinswoman, that they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words. For at the window of my house I looked through my casement, and beheld among the simple ones, I discerned among the youths a young man void of understanding. Passing through the street near her corner, and he went the way to her house in the twilight, in the evening, in the black and dark night. And behold, there met him a woman with the attire of an harlot and subtle of heart. She is loud and stubborn, her feet abide not in her house. Now is she without, now in the streets, and lieth in wait
at every corner. So she caught him and kissed him, and with an impudent face said unto him, I have peace offerings with me. This day have I paid my vows. Therefore came I forth to meet thee diligently to seek thy face, and I have found thee. I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let us take our fill of love until the morning. Let us solace ourselves with loves. For the good man is not at home, he is gone a long journey. He had taken a bag of money with him and will come home at the day appointed. With her much fair speech, she caused him to yield. With the flattering of her lips, she forced him. Yes. He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks. Till a dart strike through his liver as a bird. Till a dart strike through his liver as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life. Hearken unto me now, therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth. Let not thine heart decline to her ways. Go not astray in her paths, for she hath cast down many wounded. Yea, many strong men have been slain by her. Her house is the way to hell, going down to the chambers of death. नीति वचन 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवढ़ी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। ओह माय गॉड। 10 वचन से आगे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 15 वचन से आगे, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। हालेलुया। तेरा श्रोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरिणी
या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हुआ? हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हालेलुया, हालेलुया। 22 वचन से आगे, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा, आमीन, और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। हालेलुया। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। ओह माय गॉड, थैंक यू जीसस। मैं इन वचनों की ओर अपने कान लगाती हूँ और इन वचनों को मैं ग्रहण करती हूँ और मैं इस शिक्षा से कभी भी मुंह ना मोड़ूंगी। यह शिक्षा मुझे सफलताओं की ओर लेकर जाएगा। हर पराये शक्तियाँ जो भी मेरे जीवन को सताए, मैं उसके पार होकर चले जाऊंगी और हमेशा परमेश्वर का वचन मेरे सामने रखूंगी ताकि मैं इन शक्तियों के अधीन ना जाऊं। नासरी यीशु की सामर्थ्य मेरे अंदर काम करे और मैं कभी भी इन शक्तियों के अधीन ना जाऊं, कभी ना जाऊं, कभी ना जाऊं। मेरी हर अवस्था में मैं परमेश्वर के साथ संगति में रहूं। नासरी यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। ये जो मैंने प्रेयर किया, ये हम सब मिलके इकट्ठे इन शब्दों को आमीन कह रहे हैं। ये हम सब के लिए लाभदायी रहेगा। आमीन। अन्य चेतावनियाँ 6 अध्याय पहले वचन से, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नयन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी 20 वचन से आगे, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हालेलुया।
आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है। हालेलुया। निर्बुद्ध है। हालेलुया। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है। आमेन। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। हालेलुया। 33 वर्ष से आगे पढ़ेंगे। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि न करेगा, और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा। आमेन। थैंक यू जीसस। 7 अध्याय का पहले वचन से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथीन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। हालेलुया। हालेलुया। एक उदाहरण 6 वचन से आगे। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से, हालेलुया, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास को सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। हालेलुया। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंध रस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जो बहलाते रहे, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे। क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया है।
रबाबकसे एकतकिन बरला रबाह अखासे हिकतकिन बिरुश रबाकसा, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। शबियान सोकम्बरो तिहल्लाह कसे हिकतकिन बिराश रबाकसे कुहब अहतीन रबाह अखतकिन बरा अल्लाह से के तिल रबाहसा। 22 वचन से आगे, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मोड़ ताड़ ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। 24 वचन से आगे, हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। ओ माय गॉड, थैंक यू जीसस। ये वचन का रेफरेंस रेवलेशन में है, प्रकाशित वाक्य में 26 वचन का। क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी, एक संख्या होने वाली है। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, जीसस हेल्प अस फादर। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंच जाता है। बच के रहो माय डियर फ्रेंड्स, बच के रहो। आप स्त्री हो पुरुष हो फर्क नहीं पड़ता है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये किसी भी इंसान के अंदर से काम कर सकता है। कोई बच्चे में से भी काम कर सकता है, जवानों में से काम कर सकता है, बूढ़े लोगों के अंदर से भी ये काम कर सकता है, स्त्री में से पुरुष में से किसी में से भी वो काम कर सकता है। ये एक स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है। बच के रहना है हमको इस स्पिरिट से। बहुत ओपनली ये स्पिरिट का लक्षण दिया गया है, बहुत अच्छे से हमने इसे समझना है कि यहाँ पे जो लिखा गया है वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये वचन आपको मार्गदर्शन करता है और ओपनली बता देता है। अगर आप फ्लर्ट करते हैं, अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं, अगर आप पर स्त्री के साथ संगति में है, आप मसीह है और आप ऐसा कर रहे हैं, आप बहुत बहुत बड़ा दुख मोल रहे हैं अपने जीवन में। और आपने देखा ना कि बड़ी संख्या में लोग उसकी तरफ से रहने वाले हैं, उसकी तरफ ज़्यादा उसकी शक्तियाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा संख्या रहने वाली है। और उसका अंत भी बोल दिया है। देखो, जैसा परमेश्वर ने उत्पत्ति में बोला था आदम को कि ये फल नहीं खाना, निश्चित ही जिस दिन तू ये फल खाएगा निश्चित ही तू मर जाएगा। और हवा ने वही सेंटेंस को शैतान के मुंह से सुना, लेकिन निश्चित मर जाएगा इसके बदले में उसको ये सम्मति दी गई थी, तू सच में थोड़ी मरेगी, तू सिर्फ परमेश्वर जैसा है वैसा बनेगी, भले बुरे ज्ञान से भर जाएगी तू। और उसने वही बात को याद रखा। उसको मरना क्या होता है ये तो पहले बात मालूम ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसको वो अनुभव ही नहीं था मरना मतलब क्या होता है। और शैतान को वो पता था, क्योंकि शैतान में से वो उजियाला निकाल लिया गया था। उसको पता था मरना मतलब उजियाला निकल जाना है, उजियाला निकल जाता है माय फ्रेंड्स। परमेश्वर का आत्मा का जो सूचनाएं हैं, इंस्ट्रक्शंस है, वो उजियाला है, वो ही ज़िंदगी के रास्ते चलाता है। अगर वो आपके अंदर से हट जाने के लिए आप चाहते हैं और आप मृत्यु के हाथों में जाना चाहते हैं, तो शैतानी जगत को देख लीजिए, वो मृत्यु का पूरा एग्जाम्पल आपको दिखेगा। जो कुछ भी वॉयलेंस है, जो करप्शन है, जो कुछ भी रगड़े झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, लुचपन, धोखाधड़ी, जितना कुछ आपको देखने को अनुभव करने को मिला है, वो सब कुछ शैतान के जगत में है। वो सब कुछ मृत्यु उसका नाम है, उसका नाम मृत्यु है। क्या आप जाना चाहते हैं वैसे इसमें? तो उसके लिए रास्ता यही है, व्यभिचार, ये सब उसी का है।
वो रास्ता आपको उसमें लेकर जाता है, मृत्यु में आपको लेकर जाता है। और मृत्यु का आपने क्या पढ़ा? आखिरी में जो नष्ट करने के लिए शत्रु बाकी है वो है मृत्यु। आखिरी में जो नष्ट करने के लिए रखा गया है वो है मृत्यु। यानी आप उस दिशा में जाएंगे तो आप उसके अंदर कंप्लीटली खत्म होने वाले हैं, भविष्य नहीं है आपको। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स, है ना। चुनाव हमारा है, हमने जीवन को चुनना है। परमेश्वर आपके ऊपर थोपता नहीं है, जोर नहीं डालता है, कुछ धमकी नहीं देता है। वो चुनाव करने का इंस्ट्रक्शंस देता है, उसको पकड़ने का अनुग्रह का आत्मा देता है। हमने उसको यूज़ करना है और हम करेंगे, निश्चित करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। अब तक किए हुए कामों को वो माफ़ करके परमेश्वर आगे बढ़ने का रास्ता हमको दे रहा है, हमने उसे स्वीकार लेना है। आमीन। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान देखेंगे। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 20 chapter 1 verse से 8 verse, 1 Samuel 19 chapter। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय 1 वचन से 8 वचन। पहले शमूएल की पत्री 19 अध्याय। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को बहुत मन से, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो जीवन का रास्ता है माय फ्रेंड्स। इसको हमने तुच्छ नहीं जानना है। मृत्यु हमारी नहीं है, मृत्यु हमको, मनुष्यों को नहीं चाहिए। मृत्यु, शैतान जो भी दिखता है आपको, वो सब कुछ मृत्यु है, वो ही मृत्यु है। उसके अंदर से परमेश्वर हट गया है। जिसके अंदर से परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस हटा दिया जाता है वह मृत्यु कहलाता है। उसका नाम मृत्यु है, शैतान मृत्यु है। ओके, तो आपको या तो इस तरफ या तो उस तरफ होना है। या तो आप परमेश्वर के वचन में भरपूर हो जाइए, वो इंस्ट्रक्शंस है आपको जीवन की ओर लाएंगे। अगर इसको नहीं लेना चाहते तो निश्चित है फिर आप मृत्यु की ओर है। ओके, क्योंकि बिना वचन आप पढ़े, बिना वचन के अभ्यास किए, बिना वचन को आज्ञा पालन किए आप उजियाले के नहीं रहते हैं। उजियाले के रहने के लिए सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेना काफ़ी नहीं है। ओके, हमने उस रास्ते को भी चलना है जो परमेश्वर ने वचनों के अंदर से हमको मार्गदर्शन किया है, हमको गाइड कर रहा है। वो हमको गाइडिंग स्पिरिट नहीं चाहिए, वो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है जो हमें गाइड करता है, हमें बताता है, वचन देता है। कुछ तो ऐसा कारण बना देता है कि हम उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ओके, कुछ तो ऐसी घटना बना देता है कि हम बस मोड़ लेते हैं, अपने आप को मोड़ देते हैं और अपने आप को उसके पीछे पीछे चलाना शुरू कर देते हैं। ये कौन है? परमेश्वर का आत्मा है ये। ओके, तो हमने ये जो 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है तुच्छ नहीं जानना। ये कारण दिया है परमेश्वर ने कि हम अपने आप को ठोक के बाजू में करें और इस वचन के अधीन लेकर आए। आमीन। तो हमने निश्चित पढ़ना है इस वचनों को और अभ्यास के साथ पढ़ना है, अकेले में बैठकर पढ़ना है। इसके अंदर के मार्गदर्शन को हमने अपने जीवन में उतार लेना है, हमने अपने स्मरण में रखना है और हम उसमें चलते हुए जाना है, आज्ञा पालन करते हुए जाना है। 2 साल के अंत में जब हम देखेंगे परमेश्वर के आज्ञा वचनों के आज्ञा पालन किया हुआ व्यक्ति निखर कर आएंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर शैतान मृत्यु है और शैतान की सारी अवस्थाओं को आपने पृथ्वी के ऊपर फैलते हुए अच्छे तरह से अनुभव के साथ देख भी लिया है, अनुभव के साथ लिया भी है अपने जीवन में, आपको पता है उसका दर्द क्या है, उसकी घटनाएं कैसी होती है, कैसे व्याकुल कर देता है वो लोगों को, कैसा पछाड़ देता है लोगों को, किस प्रकार से हाय हाय तौबा तौबा करते हुए लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, सुइसाइड्स करने को तैयार हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है लोगों को आगे बढ़ने में, है ना? क्या है? कुछ उसके अंदर से शक्ति नहीं बचती है शैतान का जब इस प्रकार का हावी होना हो जाता है हमारे ऊपर। ओके, तो इसका मतलब
हम उसके अंदर से कुछ नहीं प्राप्त करता है। मनुष्य कुछ नहीं प्राप्त किया है उसके मृत्यु में से, ओके, उसके धन संपत्ति में से, उसके ऐश्वर्यों में से कुछ नहीं प्राप्त किया है। सब कुछ है लेकिन परमेश्वर नहीं है, और जो परमेश्वर है वो शैतान में नहीं है। ओके, तो वैसा ही परमेश्वर चाहता है कि आप अगर परमेश्वर के हैं तो उसकी आज्ञा पालन में हो जाओ, और उसके आज्ञा पालन से आप भरपूरी में रहोगे। आपको रोज की रोटी चाहिए, आपको रोज के कपड़े चाहिए, आपको रोज का उठना बैठना, बहुत कुछ चाहिए। सब कुछ परमेश्वर में है, उसके वचन के आज्ञा पालन के साथ आपको वो देता है। आमीन। वो आपको तुच्छ नहीं जानेगा। कुरनेलियुस यहूदी नहीं था, फिर भी कुरनेलियुस को उसने सहायता किया, उसको याद रखा, उसके घराने को उद्धार दिया, उसको जाके पतरस को मजबूर कर दिया, जा तू अन्य जाति के बीच में चला जा, तेरे रीति रिवाज में नहीं बनता है, फिर भी तू चला जा वहाँ पर और कर उनकी सेवा, और जो मैं कहूँगा उसके लिए वो कर। कितना परमेश्वर ऐसा कुरनेलियुस था जो उसकी जाति में वो परमेश्वर का नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसका रीतियों को माना कि वो यहूदियों की रीतियों को मानता हुआ चल रहा था, यहूदियों के दिन समयों को वो मानता हुआ चल रहा था, और उसको परमेश्वर ने आदर किया, जबकि वो अन्य जातियों में से है, फिर भी परमेश्वर ने उसका ध्यान रखा। आपको क्यों छोड़ेगा अगर वो आज्ञा पालन करते हुए प्राप्त होंगे तो। आमीन। ध्यान रखिए, या तो उजियाला है या तो अंधेरा है, या तो जीवन है या तो मृत्यु है, दोनों के बीच वाला कुछ भी नहीं है। ओके, अब बड़े धोखे में रहेंगे, ना यहाँ ना वहाँ, ऐसे आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप आज्ञा पालन कर रहे हैं परमेश्वर के वचन का तो आप निश्चित है उजियाले से भरे हैं। अगर आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे परमेश्वर के वचन का, निश्चित है आप मृत्यु के अंदर फंसे हुए हैं, और उसकी दुर्दशा भी आपके साथ है। अगर वचन के आज्ञा पालन में है तो वचन के आशीषें निश्चित है आपके अंदर है, 100% है, परमेश्वर आपकी ओर से है, ये 100% है, गारंटीड है। नो मिडिल ग्राउंड, बीच का ज़मीन कुछ नहीं है, ख़त्म। ओके, या तो यहाँ या तो वहाँ। चुनाव किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। समझ के साथ भी चुनाव करना है, और पवित्र आत्मा के अनुग्रह का सहायता लेकर भी चुनाव करना है, लेकिन मूर्खता नहीं करनी है। आमीन। हम 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे हम, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के उपयोग में आता है। तो हमने इस परमेश्वर ने ऐसा होने के लिए हमको अनुग्रह का आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता में है हमें वचन सिखाने के लिए। हमने निश्चित इस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। अनुग्रह के आत्मा, परमेश्वर के आत्मा, तेरी दया हम पर उतर कर आए। हम शरीर से मारे गए हैं, हम शरीर के कुव्वत में ही फंसे पड़े हुए हैं। अब समय बदल कर आत्मा के कुव्वत में हमको उठा ले। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रेम करते हैं। अपने घुटनों के बल आकर हम इस बात को कबूल करते हैं कि तू हमें इसीलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करता हुआ, और हमें मुर्दों में से जिलाया हुआ प्रभु यीशु का आत्मा हमें प्राप्त हुआ। वो हमारा बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह हमें पाप से आज़ाद किया, हमें श्राप में से आज़ाद किया, परमेश्वर के अनंत काल का जीवन हम में रखा, और उसके मार्गदर्शन, उसके वचन हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा हम में दे दिया। हमेशा हमेशा के लिए हम तुझे वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा। हर एक बार तेरे मार्गदर्शन को हम आदर के साथ तेरे अधीन आते हुए चलने के लिए हमें और ज़्यादा सहायता कर। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।